Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Let's start with today's lecture. So let's start with Bismillahir Rahmanir Rahim. So today is our 11th lecture of animal behavior and today is Saturday 2nd May 2020. So we were discussing in yesterday's lecture we were discussing about the reproductive behavior of three-spined stickleback fish. So I have told you that it is a freshwater fish native of both of North America, North Europe and North Asia. And its reproductive cycle has two phases. The very first phase is the sexual phase and the second is the parental phase. The sexual phase. So sexual phase begins or they spawns in May and July. Spawns meaning when female lay eggs and male fertilizes these eggs with the sperm and zygote is formed. That term is known as spawning. That as in most females or in male stickleback, external fertilization takes place. External fertilization means that fertilization of egg takes place outside the body of female. So in the nest, first of all, female lays its eggs and then the male comes and sprays its sperm on these eggs. As a result, fertilization takes place and the zygotes are formed. So they spawn in May and July, and the sexual phase is further consists of three subphases. The very first is nest building, second one is territoriality, and third is courtship. So we have discussed the very first subphase of the sexual phase, that is nest building. So I have I have taught you that they build nest in spring before spawnings. Like spring, we have spring in March or April. So as they have to spawn in May and July, so they start building their nest on the start of spring in March or April, and they build their nest at the bottom of the pond or freshwater bodies. As it is a freshwater fish living in freshwater bodies like rivers, in ponds, in streams or lakes. So mostly they are found in ponds because they are small fishes and they can't withstand with the waves of rivers or streams. They make nest from vegetation, sand, pebbles, and debris. So they collect different vegetation or sand or different pebbles or debris from somewhere from the pond, and then they stuck to all the things together by a substance called spigin, and this is a proteinaceous glue-like substance that is secreted by the kidneys of stickleback fish. Now the whole work of nest building is performed by male stickleback fish. फीमेल हैज़ नथिंग टू डू विद द नेस्ट बिल्डिंग. हमारे पास जो नेस्ट बिल्डिंग है वो हमारे पास प्योरली मेल करता है और फीमेल नेस्ट बिल्डिंग में कोई काम या कोई किरदार अदा नहीं करती. तो अब क्या करता है कि ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करके ला के एक जगह इकट्ठी करता है और फिर उनको ग्लू लाइक सब्सटेंस से जोड़ देता है और बॉडी एक नेस्ट लाइक बॉडी बना लेता है. ठीक है, तो चलते हैं सेकंड फेज में. तो सेकंड फेज ये मैंने नोट्स की पिक्चर्स थोड़ी लगाई हैं. द सेकंड फेज इज द टेरिटोरियलिटी. सो इन दैट फेज द मेल स्टिकलबैक फिश डिफाइंस इट्स टेरिटरी. How its territory, that it defines some area around its nest, and this area is now called its territory, and in that area other male stickleback fish is not allowed. So during nest building, the belly and throats of male stickleback changes from cryptic dull gray to bright red. क्या होता है हमारे पास कि जब भी नेस्ट बिल्डिंग से कुछ पहले या नेक्स्ट बिल्डिंग के दौरान हमारे पास जो मेल स्टिकल बैक फिश है उसका जो थ्रोट और बेली, लोअर पोर्शन ऑफ थ्रोट एंड लोअर पोर्शन ऑफ बेली जो है वो डल ग्रे से चेंज होके रेड कलर का हो जाता है. व्हाई दिस चेंज इन कलर इज ड्यू टू स्पेशल कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन देयर डाइट. कि बिकॉज उस सीजन में वहां पे जो वेजिटेशन होती है वहाँ पे जो, चूंकि बिकॉज इट इज़ एन हर्बीवोरस फिश, इट इज़ अ हर्बीवोरस फिश, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है ये वीड्स वगैरह पे और प्लांट मटेरियल पे फीड करती है. तो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन वहाँ पे जो वीड्स वगैरह जो वेजिटेशन होती है उसमें कैरोटीनाइड्स की जो
कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हुई होती है। एज अ रिजल्ट जैसे ही ये उस मटेरियल पे फीड करते हैं तो इनकी बॉडी में भी कैरेटिनाइड्स, रेड कैरेटिनाइड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनके लोअर थ्रोट और लोअर बेली के रीजन में रेड कलर अपीयर होता है। एंड दिस ब्राइट रेड कलर इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ मेल क्वालिटी। हमारे पास फीमेल जो हैं वो वैसी की वैसी क्रिप्टिक डल रहती हैं, जबकि जो हमारे पास मेल्स हैं उनकी जो नेस्ट बिल्डिंग के दौरान या स्पॉनिंग से पहले उनकी जो थ्रोट का और बेली का लोअर पोर्शन है वो क्रिप्टिक डल से चेंज होके ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। तो वी कैन इजीली डिफ्रेंशिएट भी हम कर सकते हैं, लाइक जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, कि इन विच यू कैन इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल। अगर आप ऐसे आम सीजन में देखें तो वी कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल स्टिकल बैक फिश और फीमेल स्टिकल बैक फिश, बट ड्यूरिंग nest building or during spawning season we can easily differentiate between male stickleback fish and female stickleback fish. So once that territory is made, now अब क्या होता है कि एक बार उसने एक टेरिटरी डिफाइन कर ली, अब उसके बाद कोई भी दूसरा मेल स्टिकल बैक फिश उस टेरिटरी में एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक और फिशेज एंटर हो जाएं और जो फीमेल है वो एंटर हो सकती है, लेकिन दूसरा मेल स्टिकल बैक फिश एंटर नहीं हो सकता। लेकिन अगर अगर ये पढ़ लूं फिर बताता हूँ। व्हेन एन इंट्रूडर, इंट्रूडर कहते हैं कोई भी बाहर से आने वाला, व्हेन एन इंट्रूडर एंटर्स द टेरिटरी ऑफ फिश द डिफेंडर रशेस टुवर्ड्स द intruder with an aggressive posture of raised spines and gaping mouth। ठीक है, पहले भी मैंने आपका साइन स्टिमुलस जब हम पढ़े थे इसका एग्रेसिव बिहेवियर मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही कोई और मेल स्टिकल बैक फिश इंटर होता है इसकी टेरिटरी में, तो चूंकि उस मेल स्टिकल बैक फिश के रेड कलर की बेली और थ्रोट होता है, तो वो रेड स्पॉट जैसे ही इसको नजर आता है, वो रेड स्पॉट क्या है इसके लिए साइन स्टिमुलस है। और जैसे ही साइन स्टिमुलस मिलता है एक एग्रेसिव बिहेवियर इनिशिएट होता है, या वो साइन स्टिमुलस ट्रिगर करता है एग्रेसिव बिहेवियर को। और जो हमारे पास डिफेंडर होता है या जिसकी टेरिटरी है वो क्या करता है, उस इंट्रूडर की तरफ स्पीड में जाता है एग्रेसिव पोस्चर के साथ। और एग्रेसिव पोस्चर क्या है कि अपने स्पाइंस जो है वो जो उसके 3 स्पाइंस प्रेजेंट हैं बैक पे उनको खड़ा कर देता है, रेज हो जाते हैं वो। एंड गेपिंग माउथ मीन्स मुंह खोल के, जो कल मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, आपको नजर आया होगा कि वो मुंह खोल के जाके उस फिश पे अटैक करता है, ये इसका एग्रेसिव बिहेवियर है। बट समटाइम्स क्या होता है, नाउ समटाइम्स दिस एग्रेसिव बिहेवियर डजंट वर्क। कभी कभार क्या होता है कि वो हमारे पास जारी बात है कि बॉडी में फर्क होता है। अब ये जो हमारे पास जिसकी टेरिटरी है, जो डिफेंडर है, वो बॉडी में थोड़ा सा छोटा होता है और जो इंट्रूडर है वो बॉडी में बड़ा होता है, तो जारी बात है वो उससे हेल्दी होगा। तो अब क्या होता है कि कभी कभार ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, लेकिन इसका एग्रेसिव बिहेवियर काम नहीं कर रहा होता और वो जो इंट्रूडर है वो उसकी टेरिटरी से भागता नहीं है। तो फिर इसका एक और बिहेवियर है। सो now sometimes this aggressive behavior doesn't work, then the defender stays still in vertically upright position, down posture, giving jerking movements to its body। ठीक है, क्या होता है कि ये अपराइट पोजीशन में, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ठहर जाता है और मुंह इसका नीचे की तरफ होता है। लाइक अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, अगर इधर अगर हम देखें, ये फिश में लेता हूं तो ये किस तरह होता है, ये इस पोजीशन में जाता है। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नीचे सारी रेत है, तो क्या होता है ये इस पोस्चर में ठहर जाता है और अपनी बॉडी को जर्किंग मूवमेंट्स देना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, और इस जर्किंग मूवमेंट्स का क्या मतलब है, upright down posture giving jerking movements to its body to convey message to intruder that I will bury you there। तो ये साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि ये इस तरह करके और जर्किंग मूवमेंट दे रहा है और थोड़ा सा अपना जो इसकी स्नाउट होता है या मुंह की जो इसकी माउथ की टिप होती है उसको जमीन के अंदर थोड़ा बहुत खड्डा कर रहा होता है। तो साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि क्योंकि वो डर के नहीं जा रहा था जो इंट्रूडर है, तो अब ये उसको ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे गाड़ दूंगा। तो ये मुझे लगता है कि हमारे पास जो स्टिकल बैक फिश है, मेल स्टिकल बैक फिश, बॉलीवुड फिल्म्स का बहुत बड़ा फैन है कि वो इस तरह कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा। तो ये फिर इस तरह का पोस्टर शो करता है
और क्यों शो करता है? दिस इज टू स्केयर अवे इंट्रूडर, क्योंकि वो एग्रेसिव बिहेवियर से बाहर नहीं जा रहा था, नहीं भाग रहा था टेरिटरी से। तो ये क्या करता है कि फिर अपराइट पोजीशन में ठहर जाता है, अपनी बॉडी को जर्किंग मूवमेंट्स देता है, थोड़ा बहुत जमीन को बरी करता है और उसको कन्वे करता है मैसेज दैट आई विल बरी यू देयर, कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हें यहीं पे गाड़ गाड़ दूंगा। तो कभी कभार क्या होता है कि वो जो इंट्रूडर है वो इससे डर के वहां से भाग जाता है, इसका जो डायलॉग है वो काम कर जाता है और वो इंट्रूडर डर जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इंट्रूडर नहीं भागता, तो फिर क्या होता है कि वो आगे हम पढ़ेंगे, आप लोग ने शायद पढ़ा भी होगा, फिर कंपटीशन होता है और जो फिर फाइट जीतता है फिर वो नेक्स्ट उसी का होता है। ठीक है, तो ये टेरिटोरियलिटी बिहेवियर है कि हमारे पास नेस्ट बिल्डिंग के बाद क्या करता है, मेल फिश एक टेरिटरी डिफाइन करती है और उस टेरिटरी में जैसे ही कोई मेल इंट्रूडर या मेल स्टिकल बैकफिश इंटर होती है तो ये क्या करता है कि एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। और एग्रेसिव बिहेवियर क्या है कि पहले पहले तो स्पाइन रेस करके और गैपिंग माउथ के पास उसके पास जाते हैं। तो मोस्ट केसेस में वो मेल जो है वहां से डर के भाग जाता है। लेकिन अगर ये तरकीब काम ना कर रही हो तो वो क्या करते हैं, अपराइट पोजीशन में ठहर जाते हैं, अपनी बॉडी को जर्किंग मूवमेंट्स देते हैं और उसको ये मैसेज कन्वे करते हैं दैट आई विल बरी यू देयर। आई थिंक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो हमारे पास फर्स्ट फेज था नेस्ट बिल्डिंग, वो भी पढ़ लिया। सेकंड फेज जो है सेक्सुअल फेज का टेरिटोरियलिटी, अब उसने क्या नेस्ट भी बना लिया और अपनी एक टेरिटरी भी डिफाइन कर ली। द थर्ड इज द कोर्टशिप। कोर्टशिप कहते हैं कि व्हेन मेल एंड फीमेल both lays their egg, may female lay their eggs, female lay its eggs and the male lays its sperms and the fertilization takes place. Now this process is known as courtship। ठीक है, किसे कहते हैं कि हमारे पास फीमेल आके एग ले करती हैं और मेल जो है उसके ऊपर अपने स्पर्म स्प्रे करता है। तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम कोर्टशिप कहते हैं। Now, Tinbergen found that swollen bellies of female act as sign stimulus to induce courtship। ये courtship behavior जो है मेल में कब प्रोड्यूस होता है या कब ट्रिगर होता है, उसके लिए भी किस चीज की जरूरत है, साइन स्टिमुलस की। कि जैसे ही वो, क्योंकि अब स्पॉनिंग का सीजन है तो जो फीमेल्स होती हैं उनकी बेलीज स्वेलन हुई होती हैं, फूली हुई होती हैं, बिकॉज उसके अंदर सारे एग्स होते हैं, 300 to 400 एग्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेलीज स्वेल हुई होती हैं। और वो स्वेलन बेलीज जो है वो साइन स्टिमुलस का काम करते हैं और वो मेल जैसे ही उस फीमेल को या स्वॉलन बेलीज के साथ फीमेल को देखते हैं तो उसको पता लग जाता है कि ये अब स्पॉनिंग के लिए रेडी है फीमेल और एग्स ले करने के लिए रेडी है। और वो क्या करती है कि जैसे ही स्वॉलन बेलीज को देखता है उसमें कोर्टशिप बिहेवियर एक्टिवेट होता है। कोर्टशिप बिहेवियर कौन सा है वो हम पढ़ते हैं। स्वॉलन बेलीज ऑफ फीमेल शोज दैट दे आर ग्रेविड। वो उसको पता चल जाता है कि स्वॉलन बेलीज हैं तो ये ग्रेविड है। ग्रेविड मीन्स दैट दे हैव एग्स इन देयर bellies। The males are so focused on female swollen bellies that sometimes they court a parasitizing fish with swollen round bellies। कि क्या होता है कि और भी स्मॉल, इतना ज्यादा ये साइन स्टिमुलस पे फोकस्ड होता है, लाइक जैसे पहले हमने पढ़ा था कि रेड स्पॉट पे फोकस है, चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, उस पर रेड स्पॉट है तो वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। तो इसके लिए साइन स्टिमुलस है स्वॉलन बेलीज का। तो अब कोई भी चीज, कोई भी फिश विद स्वलन बेली उसकी टेरिटरी में एंटर होगी तो जैसे ये स्वलन बेली को देखते हैं इनमें कोर्टशिप बिहेवियर एक्टिवेट हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि पैरासिटाइजिंग फिश, जो हमारे पास बहुत सी पैरासिटाइजिंग फिशेज हैं जो दूसरी फिशेज पे स्टक होके उनका ब्लड पीती रहती हैं, चूसती रहती हैं। तो क्या होता है कि उससे जैसे ही ब्लड पी के आते हैं तो उनकी स्वेली जो है बेली जो है वो स्वेल हुई होती है। तो ये जैसे ही देखते हैं उन पैरासिटाइजिंग फिश को तो इनका फोकस होता है बेलीज पे। तो जैसे ही देखते हैं कि बेली स्वेल हुई हुई है, स्वेलन बेलीज जिस तरह देखते हैं तो इसमें कोर्टशिप बिहेवियर एक्टिवेट होता है और वो कोर्टशिप बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है। कोर्टशिप बिहेवियर क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अच्छा, कोर्टशिप बिहेवियर क्या है, दैट मेल स्टिकल बैक शो अ टाइप ऑफ डांस इन अ zigzag मैनर लीडिंग टू द नेस्ट। द फीमेल फॉलो द मेल इन द सेम पैटर्न टुवर्ड द male। Male prod the tail of female once she is in the nest, touching with snout। Prod कहते हैं touching with snout को। When female lay eggs in the nest, she is driven away out of the nest। The male fertilizes all the eggs by discharging sperm। क्या होता है कि जैसे ही ये swollen bellies या फीमेल को देखते हैं, फीमेल को तो पे ध्यान नहीं देता, इसका ध्यान सारा किस पे होता है, swollen bellies पे।
और जैसे ही स्वलन बेली इसको नजर आती है, साइन स्टिमुलस नजर आता है, इसमें कोर्टशिप बिहेवियर एक्टिवेट होता है। अब कोर्टशिप बिहेवियर किस तरह है कि ये फीमेल के आगे जिग जैग मैनर में डांस करते हुए अपने नेस्ट की तरफ जाता है और नेस्ट के अंदर से एक बार गुजर के दिखाता है, ताकि फीमेल को पता चल जाए कि इसका नेस्ट कहाँ पे है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये जा रहा होता है, फीमेल भी इसके पीछे उसी तरह जिग जैग मैनर में डांस करती हुई इसके नेस्ट में जाती है। तो जैसे ही नेस्ट वो देख लेती है, वो नेस्ट के अंदर इंटर होती है। उसके बाद ये क्या करता है, मेल prod means it touches the tail of female with its snout के साथ टच करता है। तो जैसे ही वो टच करता है तो फीमेल क्या करती है, उसको पता चल जाता है कि यही इसका नेस्ट है, तो वो वहां पे एग ले करना स्टार्ट करती है। तो जैसे ही एग्स ले कर देती है, उसके बाद फीमेल को नेस्ट से बाहर निकाल दिया देता है ये, और उसको टेरिटरी से भी बाहर निकाल देता है। उसके बाद ये जाता है, खुद उसी नेस्ट में जाता है जहाँ पे एग्स ले किए हैं फीमेल ने, वहां पे जाके स्पर्म डिस्चार्ज करता है। स्पर्म जाके एग्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं और फिर जाइगोट बनता है। अगर मैं आपको सबर एक वीडियो में दिखा दूं अगर आप लोगों को, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये वीडियो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास फीमेल फिश है। इसकी स्वेलन बेली आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, और यहाँ पे इसका रेड कलर भी प्रेजेंट नहीं है। जबकि मेल को अगर आप देखें तो उसकी ये लोअर थ्रोट और बेली से नीचे पोर्शन जो है वो रेड कलर का हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, ये उसको फीमेल को अपना नेस्ट दिखाया। नाउ दिस इज द नेस्ट ऑफ मेल स्टिकल बैक फिश। ठीक है, तो ये इसकी स्वेलन बेली आपको नज़र आ रही होगी फीमेल की। तो अब ये इसका बिहेवियर स्टार्ट है, कोर्टशिप बिहेवियर। तो अब ये इसको बता रहा है, वो ओपनिंग बता रहा है कि कहाँ से तुम, ये इसने जिग जैग बैनर में डांस किया और इधर आके उसको नेस्ट से दिखाया कि यहाँ से आप इंटर होगी नेस्ट में। ठीक है, ये यहाँ से। तो अभी इसके पीछे जो है फीमेल ने इसको फॉलो किया, और ये फीमेल फॉलो करके अंदर इंटर हो गई। अब आपको देखें ये प्रॉडिंग कर रहा है उसको, उसकी टेल को जो है अपने स्नाउट के साथ से टच कर रहा है, तो ये प्रॉडिंग हो रही है। अब ये जैसे ही प्रॉड कर लेता है, उसके बाद फीमेल क्या करती है, एग्स ले कर देती है। तो जैसे एग ले कर लेती है, फीमेल को टेरिटरी और नेस्ट से बाहर निकाल देता है। अब ये खुद उस नेस्ट में आपके सामने इंटर हो रहा है, और ये अब जाके अंदर स्पर्म डिस्चार्ज करता है, और ये स्पर्म डिस्चार्ज करके खुद भी बाहर चला जाता है, और पीछे उसकी स्पर्म्स जो हैं वो एग को फर्टिलाइज करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास जाइगोट बन जाते हैं। तो आई होप कि इस मूवी से आप लोगों को समझ आ गई होगी जो कोर्टशिप बिहेवियर है। ठीक है, तो वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि कोर्टशिप बिहेवियर क्या है। कि हमारे पास इसके लिए जो साइन स्टिमुलस है वो है स्वेलन बेलीज। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास मेल स्टिकल बैकफिश स्वेलन बेलीज को देखते हैं, तो उसमें कोर्टशिप बिहेवियर एक्टिवेट होता है। ये कोर्टशिप बिहेवियर क्या है कि वो जिगजैग मैनर में डांस करते हुए अपने नेस्ट की तरफ आता है, और फीमेल भी उसी के पीछे पीछे आती है। वो नेस्ट के अंदर इंटर होकर फीमेल को दिखाता है कि हमारे पास ये नेस्ट के इंटर होने का रास्ता ये है। तो उसके पीछे फीमेल इंटर होती है, फीमेल एग्स ले करती है। उसके बाद जैसे ही एग ले कर लेती है फीमेल, फीमेल को बाहर निकाल दिया जाता है, और ये वहां जाके खुद अपने स्पर्म्स डिस्चार्ज करता है। एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब इसमें जो है ये उस साइन स्टिमुलस पे इतना फोकस्ड होता है कि कभी कभार क्या होता है कि पैरासिटाइजिंग फिश आती है, उसकी स्वलन बेलीज देख के ये क्या करता है, यही सेम कोर्टशिप बिहेवियर शो करता है, जिग जैग मैनर में डांस करता हुआ अपने नेस्ट में चला जाता है। लेकिन चूंकि वो मेल स्टिकल बैक फिश नहीं होती, वो उसकी फीमेल नहीं होती, तो वो उसको फॉलो नहीं करती, बल्कि इसको इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन ये अपना सेम कोर्टशिप बिहेवियर शो जरूर करता है बाय सीइंग और बाय ऑब्जर्विंग द स्वॉलन बेलीज ऑफ पैरासिटाइजिंग फिश। तो यहाँ से हमें एक और एग्जांपल मिलती है साइन स्पेसिफिसिटी की और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की, कि हमारे पास ये बिहेवियर जेनेटिकली कंट्रोल्ड है और प्रेडिक्टेबल है। कि लाइक आपने कोई भी फिश स्वॉलन बेलीज के साथ इंट्रोड्यूस की उसकी टेरिटरी में, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब ये सेम कोर्टशिप बिहेवियर शो करेगा और जिग जैग मैनर में डांस करके अपने नेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक केस है हमारे पास, sometime it may happen that instead of fertilizing the eggs, the male court another female to lay eggs and fertilizes all the eggs in one attempt by discharging sperm।
कभी कभार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल आई, इसने कोर्टशिप बिहेवियर शो किया और वो एग लेकर के चली गई। कभी कभार ये क्या करते हैं कि ये इंतजार करता है कि कोई और भी फिश, फीमेल फिश आ जाए और उसके सामने भी सेम कोर्टशिप बिहेवियर शो करता है, ताकि दूसरी फीमेल फिश भी जो है वो आके एग्स ले कर दे और ये सारे के सारे एग्स को फिर इकट्ठा एक ही बारी में फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, तो इसीलिए ये वो जो एग्स पहली फीमेल ले करके गई है उनको ये फर्टिलाइज नहीं करता और वो वैसे ही अनफर्टिलाइज्ड वहां पे पड़े रहते हैं। कभी कभार क्या होता है, देयर आफ्टर इट प्रोटेक्ट्स एग्स एंड यंग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड फ्रॉम वाटर करंट्स। समटाइम्स अ डल कलर मेल इंट्रूडर, कभी कभार क्या होता है कि एक ऐसा मेल इंट्रूडर, मेल स्टिकल बैक फिश आता है कि उसने उस कैराटिनाइड पिगमेंट्स पे फीड नहीं किया होता। तो जैसे ही कैराटिनाइड पिगमेंट्स पे वो चूंकि फीड नहीं करता तो उसका रेड कलर अपीयर नहीं होता, तो वो वही डल कलर मेल होता है। तो जैसे ही वो डल कलर मेल स्टिकल बैकफिश इंट्रूडर जो है वो उसकी टेरिटरी में इंटर होता है, लेकिन चूंकि उस पर रेड स्पॉट नहीं है तो उसमें एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करता मेल स्टिकल बैकफिश जो डिफेंडर है, क्योंकि वो एग्रेसिव बिहेवियर एक्टिवेट होता है विद द रेड स्पॉट। तो चूंकि ये डल ग्रे ग्रे कलर है इस इंट्रूडर का और इसमें वो रेड स्पॉट प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए उसमें एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करता और मेल स्टिकल बैकफिश कुछ भी नहीं कहता इसको। तो ये क्या करता है कि ये हमारे पास इंट्रूडर विच लुक्स लाइक एग्जैक्टली द फीमेल इंटर्स द नेस्ट, ये नेस्ट के अंदर इंटर हो जाता है और वो समझ रहा होता है कि ये एग्स ले करने गया हुआ है, एंड फर्टिलाइजेज ऑल द एग्स एंड रन्स अवे, और क्या करता है कि वो एग्स जिसको इसने फर्टिलाइज करना था उन सब को फर्टिलाइज कर लेता है और वहां से भाग जाता है। इट मीन्स दैट डल कलर्ड मेल डिसीव द होस्ट, और वो क्या करता है उस जो होस्ट था या जो वहां का डिफेंडर था उसको उसने धोखा दिया। ये फिर से वीडियो बड़ी हो गई, सो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट से थोड़ी हो ताकि वो साइज़ कम बने और आप लोग को डाउनलोडिंग में मसला ना हो। लेकिन चलें, बस इसका अब हमने टेरिटोरियलिटी भी, वो नेस्ट बिल्डिंग भी पढ़ लिया, टेरिटोरियलिटी भी पढ़ लिया और कोर्टशिप बिहेवियर भी पढ़ लिया। हमारे पास पेरेंटल केयर का एक बिहेवियर प्रेजेंट है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।